Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to DPS Sahiwal. I am Iram Asghar, SS Physics. Today we are going to study fields of force, electric field intensity, and electric field lines. Let us revise our prior concepts. Generally, in our daily life, we come across a lot of forces like gravitational force, electric force, magnetic force, nuclear force, intermolecular forces, forces of tension, air resistance, force of friction, elastic force, and the list goes on. Today we know that only few of these natural forces are responsible for the production of all other forces. These are namely gravitational force, electric force, magnetic force, and nuclear forces. That is why these natural forces are also called basic forces of nature. Scientists have been studying these forces for many centuries, and through their research work, we are now able to know the sources of these forces, their nature, their function, how do they transmit from one body to another, and many things like that. There are different methods which can be used for the calculation of these forces suggested by the scientists. Like we have studied law of gravitation, through which we can calculate the gravitational force. Similarly, Coulomb's law can be helpful for the calculation of electric force. Every force has its own range within which it can influence the other bodies coming near it. The space or region around a body in which it can influence other bodies through attraction or repulsion is called its field of force. Upon entering in these fields, objects experience forces. That is why these fields are termed as fields of force. All material objects apply force of attraction on other material objects, like our Earth. It applies its force of attraction on objects present on it and even coming near it. Likewise, Sun and other planets also apply their force of attraction on other material objects. The region around these massive material objects like Earth, Sun, etc. is termed as their gravitational field. Similarly, charged bodies apply their forces of attraction or repulsion on other charged objects if they come near them, and that surrounding region in which their force is experienced by other bodies is called their electric field. Magnets also apply their forces of attraction and repulsion on other magnets if brought closer to them. Ions also apply nuclear forces on each other. These fields are not visible. We can only feel them. To show the existence of these forces, computer-generated images are very helpful, like one shown in the figure, which is indicating the presence of gravitational field in the surrounding region of Earth. ऐसे ही हमारे पास एक मैग्नेट है जिसके इर्द गिर्द हमने आयरन फिलिंग्स को स्प्रेड किया है। आयरन फिलिंग्स ने अपने आप को मैग्नेटिक फोर्स के ज़रिए असर एक मखसूस पैटर्न में अलाइन करके मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रखा है। हमारा चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड है, इसलिए हम इलेक्ट्रिक फोर्स और चार्ज बॉडी के इर्द गिर्द पैदा होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का जिक्र करेंगे। जैसे थंडर क्लाउड्स में से जब हवा तेजी के साथ गुजरती है तो फ्रिक्शन के बायस चार्ज बिल्डअप हो जाता है और ये तमाम एक्सेसिव बिल्डअप ऑफ चार्ज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है और यही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो हैं बिलाखिर लाइटनिंग जैसे नेचुरल फिनोमेनन का बायस बनती हैं। इस फिगर में हमें दिखाया गया है कि किस तरह से नेचुरल इलेक्ट्रिक फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। इस चार्ज बॉडी के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से मौजूद हो सकती है।
इन्हें भी फिगर्स के जरिए से दिखाने की कोशिश की गई है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, इसलिए आज हम इलेक्ट्रिक फोर्स के मुतालिक बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स को चार्ज बॉडीज प्रोड्यूस करती हैं। चार्जेस आप जानते हैं दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। हर चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल करने की सलाहियत रखता है। हर चार्ज की एक मखसूस इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। माइकल फैराडे नामी साइंटिस्ट ने कहा था कि हर चार्ज बॉडी अपने इर्द गिर्द एक मखसूस इलाके में दूसरी चार्ज बॉडी को इन्फ्लुएंस कर सकती है। इस तरह से उसने इसका नाम इलेक्ट्रिक फील्ड रखा। हमने लास्ट आर्टिकल में इलेक्ट्रिक फोर्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को कूलम के पेश करदा लॉ के जरिए से कैलकुलेट किया था। चार्ल्स कूलम ने इलेक्ट्रिक फोर्स के मुतालिक एक लॉ पेश किया। ये लॉ बुनियादी तौर पे पॉइंट चार्जेस को डील करता है। अब पॉइंट चार्जेस क्या हैं? ऐसे चार्जेस जिनका साइज और मैग्नीट्यूड उनके दरमियान फासले की निस्बत कहीं कम होता है। कूलम का कहना था कि चार्जेस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन उनके मैग्नीट्यूड पर डिपेंडेंट है। साथ ही साथ ये फोर्स उनके दरमियान मौजूद फासले पर भी डिपेंड करती है। He stated that the force of attraction or repulsion between 2 point charges is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of separation between them. अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हों Q1 और Q2, तो इनके दरमियान मौजूद फोर्स ऑफ रिपल्शन को कूलम्स लॉ के जरिए से मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है थ्रू द फॉलोइंग इक्वेशन, जहां पर F क्या है? फोर्स ऑफ रिपल्शन, इसका यूनिट न्यूटन है। K कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। स्पेस के लिए इसकी वैल्यू नियरली 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है। Q1 Q2 एज वी नो पॉइंट चार्जेस हैं। R इनके दरमियान मौजूद सेपरेशन है और R कैप एक यूनिट वेक्टर है जो दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन को शो करेगा, यानी कि डायरेक्शन ऑफ रिपल्शन को। दोनों के लिए इंडिविजुअली इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। जैसा कि हमने पढ़ा कि किसी भी चार्ज के इर्द गिर्द मौजूद सराउंडिंग एरिया में उसकी फील्ड मौजूद होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरह से फाइंड किया जाए, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले सपोज करेंगे कि हमारे पास एक सिंगल आइसोलेटेड चार्ज मौजूद है। रियल लाइफ में हमें कलेक्शन ऑफ चार्जेस या मल्टीपल चार्जेस को डील करना होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए हम दो तरह के चार्जेस का सहारा लेते हैं। दोनों सिंगल चार्जेस हैं। इनमें से एक वो चार्ज जिसकी फील्ड को हम एनालाइज करना चाहते हैं, वो सोर्स चार्ज या फील्ड चार्ज कहलाता है। इसी तरह दूसरा चार्ज जो सिर्फ फील्ड की प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसे हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। अब हम इनकी डेफिनेशंस देखते हैं। फील्ड चार्ज क्या है? एक ऐसा चार्ज जिसकी फील्ड को आप स्टडी करना चाह रहे हैं, और चूंकि हम आसानी के लिए छोटा चार्ज लेंगे, सिंगल चार्ज लेंगे, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल q से। टेस्ट चार्ज एक इंतहाई छोटे मैग्नीट्यूड का हामिल पॉजिटिव चार्ज होता है। बाय कन्वेंशन इसे हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। अपने स्मॉल मैग्नीट्यूड के बायस ये सराउंडिंग रीजन में निग्लिजिबल इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करता है, इसलिए इसकी फील्ड निग्लिजिबल होती है और ये दूसरे चार्जेस को इन्फ्लुएंस नहीं करता, उनकी फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करता। इसको Q0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। नाउ वी डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड। The space or region around a charge in which its force of attraction or repulsion can be felt by other charges is called electric field. By Coulomb's law, two positive charges will always repel each other. किसी भी चार्ज की फील्ड को समझने के लिए यहाँ पर हम दो पॉजिटिव चार्जेस ले रहे हैं। एक पॉजिटिवली चार्ज्ड सोर्स चार्ज है तो दूसरा टेस्ट चार्ज है। दोनों ही एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मगर फील्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होने के बायस इसकी फोर्स स्ट्रॉन्गर होगी, इसलिए टेस्ट चार्ज इस फोर्स के बायस इससे पीछे हट जाएगा और तब तक पीछे हटता रहेगा जब तक कि वो फील्ड चार्ज की रेंज से बाहर नहीं आ जाता। इनिशियली हम सिंगल चार्ज की पैदा करता फील्ड को स्टडी करेंगे, फिर दो चार्जेस कैसी फील्ड प्रोड्यूस करते हैं उसको स्टडी करेंगे, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता मल्टीपल चार्जेस की तरफ जाएंगे। ये मुख्तलिफ किस्म की इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो हैं दिखाई गई हैं, जिनको हम लेटर ऑन डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मालूम करना चाहते हैं तो इसके लिए हम एक फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये दर हकीकत वो फोर्स है जो किसी भी फील्ड के अंदर मौजूद कोई भी चार्ज एक्सपीरियंस करेगा। इस मकसद के लिए उस चार्ज को हमें एक सर्टेन पॉइंट पे फील्ड में लाना होगा ताकि वो
इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सके। इसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहा जाता है। अगर एक चार्ज Q की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर टेस्ट चार्ज यानी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को प्लेस करें तो वो इसकी फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा, जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के जरिए से फिगर में दिखाया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज होती है, जैसे कि इक्वेशन जाहिर कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है विच हैज सिमिलर डायरेक्शन एज द इलेक्ट्रिक फोर्स। इसका यूनिट न्यूटन पर कूलम है, एज फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन एंड चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के जरिए से ना सिर्फ हम फील्ड की स्ट्रेंथ किसी भी पॉइंट पर मालूम कर सकते हैं, बल्कि उस पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन को भी मालूम किया जा सकता है। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स की इक्वेशन को हम किस तरह मॉडिफाई करें इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इक्वेशन को रीराइट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए से। हम अपनी इक्वेशन को इलेक्ट्रिक फोर्स की शक्ल में रीअरेंज करके शो करेंगे। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ टेस्ट चार्ज प्लेस्ड इन अ सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय F इज इक्वल टू Q नॉट टाइम्स E। एक चार्ज बॉडी के इर्द गिर्द पैदा होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को इस 3 डायमेंशनल इमेज में शो किया गया है। ऐसी ही किसी भी फील्ड की स्ट्रेंथ को अगर हम फाइंड करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ कूलम लॉ, तो हम इक्वेशंस का सहारा लेंगे। एज वी नो दैट electric field intensity is the force per unit charge. By Coulomb's law, the force experienced by a test charge in this field would be kq into q naught by r square into r cap. So the equation for electric field intensity would become kq q naught over q naught into r square into r cap. After cancellation, the equation would reduce to E is equal to kq by r square into r cap. This equation shows that electric field intensity is directly proportional to the magnitude of charge and inversely proportional to the distance between the field charge and the test charge, which shows that E is stronger near the charge but E is weaker as we move away from the charge because distance increases. अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दर हकीकत एग्जिस्ट नहीं करती। ये एक पिक्टोरियल डिस्प्ले है कि किस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। इस मकसद के लिए हम टेस्ट चार्ज का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी फील्ड चार्ज के इर्द गिर्द एक टेस्ट चार्ज को हम डिफरेंट पॉइंट्स पर रखते हैं। टेस्ट चार्ज डिफरेंट पाथ्स से अडॉप्ट करता है और उन पाथ्स के अलॉन्ग वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन ऑफ द चार्ज एक्सपीरियंस करता है। इन तमाम पाथ्स को हम मखसूस एरो हेड्स वाले लाइन सेगमेंट्स के ज़रिए से जाहिर करते हैं और इनमें से हर लाइन को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहा जाता है। इनको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहा जाता है क्योंकि इन लाइंस के अलॉन्ग एक टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को तस्वीर की शक्ल में दिखाने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सहारा लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने के लिए हमें 2 चार्जेस की ज़रूरत पड़ेगी, एक फील्ड चार्ज और दूसरा टेस्ट चार्ज। इस फिगर में आपको दिखाया गया है कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज Q मौजूद है और इसके इर्द गिर्द डिफरेंट पॉइंट्स पर हमने टेस्ट चार्जेस को बारी बारी प्लेस किया है। हर टेस्ट चार्ज इस फील्ड चार्ज के बाइस फोर्स ऑफ रिपल्शन महसूस करेगा। इन लाइंस ऑफ रिपल्शन को हम एरोज के जरिए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हर एक लाइन सेगमेंट जिसके साथ एक एरोहेड मौजूद होगा वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को शो करेगा। टेस्ट चार्ज को लातादाद पॉइंट्स पर रख के हम बहुत सारी फील्ड लाइंस ट्रेस आउट कर सकते हैं। यहाँ हमने टेस्ट चार्जेस को इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स पर यानी कि यकसां फासले पर रखा है फ्रॉम द फील्ड चार्ज। ये फील्ड लाइंस ना सिर्फ फील्ड की स्ट्रेंथ के मुतालिक बताती हैं बल्कि उसकी डायरेक्शन के मुतालिक भी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। माइकल फैराडे नामी साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था और डिफरेंट टेस्ट चार्जेस मुख्तलिफ डायरेक्शंस में जो फोर्सेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं उनको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ज़रिए से जाहिर किया है। हर एक लाइन उस फोर्स को जाहिर कर रही है जो टेस्ट चार्ज ने उस पॉइंट पर रखे जाने पर एक्सपीरियंस की और एरोहेड डायरेक्शन को शो कर रहा है। दर हकीकत फील्ड लाइंस पाथ ऑफ टेस्ट चार्ज को शो करती हैं और इनको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहा जाता है क्योंकि इन्हीं लाइंस के अलॉन्ग मूव करते हुए टेस्ट चार्ज अट्रैक्शन या रिपल्शन एक्सपीरियंस करता है।
नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हमें फील्ड की स्ट्रेंथ के मुतालिक इंफॉर्मेशन देती हैं। ज़्यादा फील्ड लाइंस ज़्यादा फील्ड स्ट्रेंथ, कम फील्ड लाइंस कम फील्ड स्ट्रेंथ। अब हम डिफरेंट किस्म की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैटर्न्स को स्टडी करेंगे और इसके लिए हम सपोज करेंगे कि हमारे पास एक सिंगल चार्ज मौजूद है, पॉइंट चार्ज समझ लें, और वो कंसंट्रेटेड है एक पॉइंट पर। उसे एक नन्हे से स्फीयर की तरह से आप एज्यूम कर सकते हैं। एक सिंगल आइसोलेटेड चार्ज अपने इर्द गिर्द कैसी फील्ड प्रोड्यूस करता है, उसके लिए हमने सबसे पहले एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज सिलेक्ट किया है। उसके इर्द गिर्द हमने डिफरेंट पॉइंट पे टेस्ट चार्जेस को रख के फील्ड लाइंस ड्रॉ की हैं और ये तमाम फील्ड लाइंस अलोंग द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर इमर्ज हो रही हैं इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हमेशा रेडियली आउटवर्ड होती है। लाइकवाइज अगर हमारे पास एक सिंगल नेगेटिव पॉइंट चार्ज मौजूद हो तो वो किस तरह का फील्ड पैटर्न जनरेट करेगा, उसके लिए हम फिर से टेस्ट चार्जेस को इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स पर रखेंगे। हर टेस्ट चार्ज इस नेगेटिव चार्ज के बायस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगा और चार्ज की जानिब खिंचा चला आएगा। इनके पाथ्स को हमने फिगर में एरोस के जरिए से जाहिर किया है। एक नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करती हैं अलोंग द रेडियस। अब सिंगल चार्ज की बजाय अगर हमारे पास दो चार्जेस हों तो वो किस तरह की फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, इसको ऑब्जर्व करने के लिए हम दो आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस ले रहे हैं जैसा कि फिगर में दिखाए गए हैं। इन दोनों को हम एक दूसरे के करीब रखेंगे डिस्टेंस r पर। इट इज़ एविडेंट कि ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जिस एरिया में इनकी फील्ड्स इंटरेक्ट करेंगी वहाँ पर फील्ड लाइंस जो हैं एक दूसरे से पीछे हट जाएंगी। ऐसा रिपल्शन के बायस होगा। एज अ रिजल्ट दोनों चार्जेस के सेंट्रल रीजन फील्ड लाइंस एक दूसरे से पीछे हटने के बायस कर्व्ड शेप एडॉप्ट कर लेंगी। फील्ड वहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट होगी जहाँ पर सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस मिनिमम हो। जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है, सेंट्रल लाइन जो इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रही है उसके अलोंग फोर्सेस ऑफ रिपल्शन एक्ट कर रही हैं। ये फोर्सेस ऑफ रिपल्शन ऑपोजिटली डायरेक्टेड होने के बायस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी और कैंसिल होने की वजह से पॉइंट P जो कि इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन का सेंट्रल पॉइंट होगा, वहाँ पर फील्ड मौजूद नहीं होगी और ये पॉइंट ज़ीरो फील्ड पॉइंट या ज़ीरो फील्ड स्पॉट कहलाएगा। अब हम दो आइडेंटिकल नेगेटिव चार्जेस की जानिब बढ़ते हैं जिनका साइज और मैग्नीट्यूड यकसां है, एक जैसा है। इनको भी एक दूसरे के करीब रखने पर ये एक दूसरे पर फोर्स ऑफ रिपल्शन अप्लाई करेंगे। सेंट्रल रीजन में फिर से फील्ड लाइन एक कर्व्ड शेप अडॉप्ट करेंगी। रिपल्शन के बायस फील्ड लाइंस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करने की कोशिश करेंगी। फील्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगी अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। वंस अगेन यहाँ पर भी सेंट्रल स्पॉट बिटवीन द चार्जेस जीरो फील्ड पॉइंट होगा। अलबत्ता चार्जेस के दूसरी जानिब मौजूद फोर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए कोई और चार्ज मौजूद नहीं है, इसलिए यहाँ पर फील्ड लाइंस उसी तरह से अपनी शेप को तकरीबन रिटेन रखेंगी। अब हम दो अनलाइक चार्जेस के दरमियान मौजूद फील्ड को स्टडी करेंगे। इसके लिए हम फिर से मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस सिमिलर लेंगे, अलबत्ता उन्हें एक दूसरे से कुछ फासले पर रख देंगे। अगर मैं एक टेस्ट चार्ज को इन दोनों चार्जेस के सेंट्रल रीजन में रिलीज करूं डिफरेंट पॉइंट्स पर, तो उसके नतीजे में पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा और नेगेटिव चार्ज उसे अट्रैक्ट करेगा। अब बजाय इसके कि टेस्ट चार्ज एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे, वो एक कर्व्ड पाथ में पॉजिटिव चार्ज से मूव करते हुए नेगेटिव चार्ज की जानिब जाएगा। इससे साबित होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्ज होंगी फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और टर्मिनेट होंगी एट नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर सेंट्रल रीजन में फील्ड नॉन जीरो होगी क्योंकि अट्रैक्शन चार्ज को मूव करने पर मजबूर करेगी। तमाम कर्व्ड फील्ड लाइंस के ऊपर मौजूद एरोहेड्स फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। लाइक और अनलाइक चार्जेस अपने इर्द गिर्द मौजूद फील्ड लाइंस को बेंड होने पर मजबूर कर देते हैं। अगर फील्ड लाइंस बेंट फॉर्म में हमारे पास मौजूद हैं तो फिर हम किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को मालूम कर सकते हैं। जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम मालूम करना चाहते हैं, हम उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। जैसे पॉइंट 1 पर टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को शो कर रहा है, इसी तरह पॉइंट 2 पर ड्रॉन टेंजेंट की डायरेक्शन फ़र्क है और ये
भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को शो कर रहा है। तमाम कर्व्ड लाइंस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को टेंजेंट्स ड्रॉ करके मालूम कर सकते हैं, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। अलबत्ता स्ट्रेंथ के लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। किसी भी चार्ज के लिए इन्फिनिट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को ड्रॉ किया जा सकता है। अगर हमारे पास दो ऑपोजिटली चार्ज्ड मेटल प्लेट्स हों, जैसे कि कैपेसिटर की प्लेट्स होती हैं, तो उस सूरत में सेंट्रल रीजन में फील्ड लाइंस इक्वली स्पेस्ड होती हैं और एक दूसरे के पैरेलल भी होती हैं। इन दोनों फिगर्स में यही फैक्ट ऑब्जर्व किया जा रहा है। पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म फील्ड। ऐसी फील्ड्स में नंबर ऑफ फील्ड लाइंस थ्रू अ यूनिट एरिया बिल्कुल इक्वल होता है। यानी अगर आप कोई भी सरफेस इन लाइंस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्लेस करें, तो उस सरफेस में से गुजरने वाली फील्ड लाइंस फील्ड के हर पॉइंट पर यकसां यानी कि एक जैसी होंगी। एजेस के पास अलबत्ता फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगी। इस फिगर में आपको फील्ड स्ट्रेंथ दिखाई जा रही है। जैसे ही चार्जेस एक दूसरे के करीब आते हैं, फील्ड स्ट्रेंथ में इजाफा हो जाता है। चार्जेस एक दूसरे से पीछे हटते हैं तो फील्ड लाइंस जो हैं उनका फासला बढ़ जाता है, यानी कि फील्ड स्ट्रेंथ भी कम होती चली जाती है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया भी मुस्तकिल तौर पर तब्दील होती हैं। सेपरेशन चेंज होने के साथ साथ फील्ड स्ट्रॉन्गर या वीकर होती है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज को समराइज करेंगे। हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी होती हैं। दर हकीकत हम इन्हें देखने पर कादिर नहीं हैं, सिर्फ इनको रफली स्केच किया जा सकता है या कंप्यूटर जनरेटेड फिगर्स बनाई जा सकती हैं। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जब भी फील्ड के अंदर रखा जाएगा, वो फील्ड लाइन के अलॉन्ग मूव करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव चार्ज पर ख़त्म होंगी। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा, तो वो उस पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। और ऐसी फील्ड में डायरेक्शन ऑफ फील्ड पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेगी। जहां फील्ड लाइंस एक दूसरे के करीब करीब होंगी, वहां पर फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और जहां पर फील्ड लाइंस के दरमियान फासला ज़्यादा होगा, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। अगर कोई सी दो फील्ड लाइंस एक दूसरे का रास्ता काटें, तो जहां पर वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस होंगी। यानी एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को वहां आज़ाद छोड़ा जाए तो वो दो रास्ते इख्तियार करेगा। ये तो गलत है। हमने पढ़ा हुआ है कि तमाम फोर्सेस जो हैं उनका वेक्टर सम एक्ट करेगा उस पॉइंट पर, और रिजल्टेंट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा टेस्ट चार्ज, जिसके बायस वो सिर्फ एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन को फॉलो कर सकता है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सिर्फ एक सिंगल पाथ को इंडिकेट करेंगी। टेस्ट चार्ज सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड्स के मुतालिक मज़ीद इंफॉर्मेशन नेक्स्ट आर्टिकल्स में आपको दी जाएगी।